आदाब आंध्र तेलंगाना न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हैदराबाद में ओमकारेश्वर मंदिर मंसूबे का चीफ मिनिस्टर के हाथों आगाज। रेवंत रेड्डी ने मूसा नदी किनारे 700 करोड़ के प्रोजेक्ट का रखा संगे बुनियाद। कविता नई सियासी पार्टी जागृति पार्टी का करेंगी लॉन्च। तेलंगाना की सियासत में बड़ी तब्दीली का दिया इशारा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की वजीर आजम से वीडियो कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना में ईंधन की सप्लाई मुस्तहकम, किसी किल्लत का खदशा नहीं। एलपीजी सिलेंडर्स के लिए मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर लंबी कतारों का मसला बरकरार। दिल्ली जहांगीरपुरी में कशीदा हालात के बायस गैस एजेंसी पर बाउंसर्स तैनात। मोदी ट्रंप फोन कॉल में इलॉन मस्क की शिरकत। व्हाइट हाउस ने गुफ्तगू को करार दिया मुस्बत। खवातीन जजेस की तकर्री को तरजीह दी जाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान को हिदायत। आंध्र प्रदेश असेंबली में आज एक अहम इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें अमरावती को रियासत की राजधानी का कानूनी दर्जा दिलाने के लिए करारदाद पेश की गई। जराये के मुताबिक इस करारदाद के जरिए हुकूमत हिंद से आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 की दफा 5 में तरमीम करने की दरखास्त की गई, ताकि अमरावती को बाज़ाब्ता तौर पर दारुल हुकूमत तस्लीम किया जा सके। इतलात के मुताबिक इस सिलसिले में पार्लियामेंट में 2 या 4 अप्रैल को बिल पेश किए जाने का भी इम्कान है, जो इस मामले में एक अहम पेशरफ्त साबित हो सकता है। इस खुसूसी इजलास में वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू, नायब वज़ीर आला पवन कल्याण और दीगर रियासती वज़रा समेत तकरीबन 20 अराकीन के खिताब करने की तवक्को है और आंध्र प्रदेश असेंबली का इजलास जारी है। రాజధానిపై స్పష్టతను స్థిరత్వాన్ని కల్పించవచ్చని గుర్తిస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ క్రింది విధంగా తీర్మానిస్తోంది. Hereby resolved to request the Government of India to amend the Section 5 of the Andhra Pradesh Reorganization Act 2014 as under: A. To include the word at Amaravati to subsection 2 of Section 5. B. To add the words and Amaravati includes the capital city areas notified under Andhra Pradesh Capital Region Development Authority Act 2014 to the explanation to Section 5. ఈ తీర్మానాన్ని చర్చించి దీన్ని బలపరచవలసిందిగా సమర్థించవలసిందిగా అందరినీ కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం. ముందుగా ముఖ్యమంత్రిగా ప్రవేశపెట్టిన తీర్మానంపై మన మినిస్టర్ గారు నారాయణ గారు మాట్లాడతారు. విజయవాడ గుంటూరు మధ్య క్యాపిటల్ సిటీ ఉంటే బాగుంటుంది ఇవ్వటం. విజయవాడ దగ్గర 663 మంది, విశాఖపట్నం దగ్గర 507, గుంటూరు దగ్గర 372, కర్నూలు 360, ఒంగోలు 265, రాజమండ్రి 139, తిరుపతి 113, దొనకొండ 116 మంది, మిగిలిన డిఫరెంట్ ప్లేస్లో 1037 మంది అభిప్రాయం వెలువచ్చారు. అధ్యక్ష, ఎక్కువ మంది వెలుగుచ్చింది విజయవాడ గుంటూరు మధ్య క్యాపిటల్ సిటీ ఉండాలని నిర్ణయించడం. అయితే శివరామకృష్ణ కమిటీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని నిర్ణయించమని ఫైనల్గా దాంట్లో చెప్పడం. గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి గారు అన్నీ ఆలోచించి రోడ్డు మార్గము, రైలు మార్గము, విమాన మార్గాలు, అదేవిధంగా ఓడరేవులు దగ్గరగా ఉండేటట్టుగా, అదేవిధంగా ఉత్తరాంధ్రలో చివరి జిల్లా అయిన శ్రీకాకుళంకి, అదేవిధంగా రాయలసీమలో చివరి జిల్లా అయిన అనంతపురంకి సమదూరంలో ఉండేటట్టుగా గుంటూరు, కృష్ణ ఈ 2 జిల్లాల మధ్య అమరావతి రాజధానిని నిర్ణయిస్తామని సెప్టెంబర్ 4, 2014న అసెంబ్లీలో ప్రకటన చేయడం జరిగింది. అధ్యక్ష, అయితే ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ లేదు. అయితే ల్యాండ్ పుల్లింగ్లో తీసుకోవాలని గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్ణయించడం జరిగింది. అయితే ప్రతిపక్షంలో ఉన్న వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు ఇక్కడ క్యాపిటల్ సిటీ రాకూడదని వారు 250 కార్లు వేసుకుని ఈ యొక్క
క్యాపిటల్ సిటీ ఏదైతే అనుకున్నామో అక్కడ రైతులందరినీ కలిసి రైతులందరినీ రెచ్చగొట్టడం జరిగింది. అయితే ఏ ఒక్క రైతు కూడా వాళ్ళ చెప్పిన మాట ఇలా అందరూ తిరస్కరించడం జరిగింది. అదేవిధంగా పొలాలను తగలబెట్టారు ఇక్కడ భయభ్రాంతులు చేయటానికి. అదేవిధంగా వరద ముప్పు వస్తుంది, ఇక్కడ రాజధాని కడితే అది మునిగిపోతుంది అన్నారు. అదేవిధంగా భూకంపాలు వస్తాయన్నారు. ఇక్కడ ఎక్కువ భూకంపాలు వస్తాయని అది కూడా కౌన్సిల్లో కూడా డిస్కస్ చేశారు వాళ్ళే. तेलंगाना से अहम खबर है। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में बड़े मंदिर मंसूबे का संग बुनियाद रखा है। मंचेरी वोला इलाके में मूसा नदी के किनारे ओमकारेश्वर नाम से मंदिर तामीर किया जा रहा है, जिसमें 100 फीट बुलंद शिव मुजस्समा भी शामिल होगा। यह प्रोजेक्ट तकरीबन 700 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल किया जाएगा और ये मूसा नदी प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा है। हुकूमत के मुताबिक इस मंसूबे से हैदराबाद की सकाफती शनाख्त को फरोग मिलेगा। ताहम अपोजिशन ने इस पर सवालात उठाते हुए लागत, जमीन के इस्तेमाल और शफाफियत पर तशवीश जाहिर की। పరిశ్రమల యొక్క కాలుష్యాన్ని హైదరాబాద్ నగరంలో ఉన్న డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ మొత్తం దాదాపుగా 785 స్క్వేర్ కిలోమీటర్ల ప్రాంతంలో ప్రజలు నివసిస్తున్న, కోటి మంది ప్రజలు నివసిస్తున్న, విసర్జిస్తున్న మలినాలన్నీ కూడా మూసీ నదిలో కలుస్తున్నాయి. ఇవే కాదు, ప్రమాదవశాత్తు మనుషులు చనిపోయినా, ప్రమాదవశాత్తు పశు సంపద చనిపోయినా, పశువుల కలేబరాలు, మనుషుల కలేబరాలు, పరిశ్రమల యొక్క కాలుష్యము ఈ ప్రాంతం యొక్క డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ మొత్తం మూసీ నదిలో కలవడం, ఈ మూసీ నది ప్రవహించి రంగారెడ్డి జిల్లాను దాటి నల్గొండ జిల్లాలో ఈరోజు శాసనసభ్యులు, భువనగిరి శాసనసభ్యులు అనిల్ మిత్రుడు ఇక్కడ ఉన్నాడు, బీర్ల ఐలయ్య అక్కడ ఉన్నాడు. ఆ నియోజకవర్గాల ప్రజల గోడు వింటే రాయి అయినా కరుగుతుంది. రాయి కంటే కఠిన హృదయులు ఎవడైనా ఉంటే మాత్రం వాళ్ళకు ఆ ప్రజల కష్టాలు తెలియవు. ఈ కాలుష్యం వల్ల ప్రాంతంలో వ్యవసాయంలో పండించిన పంటలు ఎవ్వరూ తినలేని పరిస్థితి వచ్చినాయి. వాళ్ళు పండించింది ఎక్కడో అమ్ముకొని అగ్వకు సగ్వకు ఇతర ప్రాంతాలలో పండించిన వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను ఈరోజు తినే పరిస్థితి. నూతనంగా పెళ్ళైన కొడుకు కోడళ్ళ నా ప్రాంతంలో ఉంటే పుట్టబోయే పిల్లలు ఈ కాలుష్యంతో కూడుకున్న నీళ్లను తాగి, ఈ కాలుష్యంతో కూడుకున్న పంటలను తినడం ద్వారా పిల్లలకి ఎక్కడ లేని జబ్బులు వస్తున్నాయని నూతనంగా పెళ్లిళ్ళైతే ఆ గ్రామాల నుంచి పట్టణానికో ఇతర ప్రాంతాలకో యువ దంపతులను తరలి వెళ్లే విధంగా తల్లిదండ్రులు ప్రోత్సహిస్తున్నారు. పుట్టిన ఊర్లో పెంచి పెద్ద చేసిన తల్లిదండ్రుల చెంతన ఉండలేని పరిస్థితి ఈరోజు నల్గొండ జిల్లాకు వచ్చింది. ప్రకృతి వల్ల వాళ్ళని ఫ్లోరైడ్ వెంటాడుతుంది. పుట్టడంతోనే అంగవైకల్యం, కాలు వంకర, కన్ను వంకర, నడువు వంకర, కన్న తల్లిదండ్రులు వ్యవసాయ కూలీలకు వెళ్ళాలంటే ఇలాంటి అవిటి పిల్లల్ని ఇంట్లో మంచానికి కట్టేసి బయటికి వెళ్తే ఎక్కడికి వెళ్తారో, మానసిక వైకల్యంతో ఇంటికి వస్తారో రారో అని ఇంట్లో పెట్టి తలుపు పెట్టి తాళం వేసుకొని వ్యవసాయానికి आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जज जस्टिस बालाजी ने जुमा के रोज तिरुमला मंदिर में हाजिरी देकर दर्शन किए। इन्होंने सुबह वीआईपी ब्रेक के दौरान मंदिर में दाखिल होकर पहले अकीदत का इजहार किया, जिसके बाद मंदिर के अंदर पहुंचकर दर्शन किए। तेलंगाना के साबिक वजीर आला के चंद्रशेखर राव की बेटी ने अपनी नई सियासी जमात जागृति पार्टी के क़याम का ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी 25 अप्रैल को बाज़ाब्ता तौर पर लॉन्च की जाएगी, जिसे तेलंगाना की सियासत में एक अहम पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है। कविता ने कहा है कि वो दिल्ली में लॉबिंग करेंगे और गली मोहल्लों में अवामी सतह पर भी काम करेंगे। उन्होंने ये भी अंदिया दिया है कि ज़रूरत पड़ने पर वो निज़ामाबाद ज़िले से इंतखाबात में हिस्सा ले सकती हैं। ఎంపీగా గెలవక ముందు అంటే అప్పటికి నాకు గ్రామ పంచాయతీ మెంబర్గా కూడా చేయలే. నేను ఎంపీగా గెలవక ముందు ఒక వాగ్దానం ఇచ్చిన, నిజామాబాద్ పెద్దపల్లి రైల్వే లైన్ ఫినిష్ చేస్తాను వాగ్దానం ఇచ్చిన. అప్పటికే అది 25 సంవత్సరాల నుంచి పెండింగ్ ఉండే. అందరు నవ్విండ్రు, 25 ఏళ్ళకి కాలేదు, పెద్ద పెద్దోళ్ళు ఎంపీ ఉన్నప్పుడు కాలే, నీతో అవుతుంది అన్నారు. జస్ట్ 3.5 ఇయర్స్లో చేసి చూపించిన నేను. అంటే నాకు ఢిల్లీలో లాబీ చేసే సత్తా ఉంది, గల్లీలో ఒళ్ళు వంచి పనిచేసే సత్తా కూడా ఉంది. ఆ పట్టుదల ఉంది నాకు. అవసరమైతే ఢిల్లీలో లాబీ చేస్తాం, అవసరమైతే గల్లీలో పనిచేస్తాం. ఖచ్చితంగా మనం రాష్ట్రం అభివృద్ధి కోసం పనిచేస్తున్నామంటే దేశం అభివృద్ధి అనేది కూడా దానిలో ఆటోమేటిక్గా మిళితమై ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ ఉన్న పాత ఎక్స్పీరియన్స్ని వాడుకుంటాం, ప్రజా సమస్యలు తీరుస్తాం. థ్యాంక్ యూ. I want to request people of Telangana, please don't think politics is not our job. Definitely politics is our job.
And politics is not rocket science. Even if it is rocket science, it is an imperative and important thing in our life which cannot be ignored. So we need to learn and understand the rocket science because politics influences every sector of our life. I appeal to the youngsters of Telangana, please don't lay your hands off and stay away from politics. Get involved in politics, change politics. You have to be inside a political party or inside a political system to change the politics of the state. I am inviting the youngsters of Telangana, please join the Jagruti Party. It will be launched on 25th of April, exit 6 on ORR. Munirabad is the place. Morning 8 a.m. is the time. Please do participate. We will change the future of Telangana. But to change that, we cannot depend on somebody else. We have to get down, feet dirty, hands dirty, build it brick by brick ourselves. So I invite बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामन राव ने आबिद रसूल खान के बेटे की शादी तकरीब में शिरकत की। तकरीब में मुख्तलिफ सियासी व समाजी शख्सियात भी मौजूद थी। केटीआर ने आबिद रसूल खान, उनके फर्जंद, दूल्हे और अहले खाना को मुबारकबाद पेश की और अहले खाना ने इसी दौरान केटीआर के साथ तस्वीरें खिंचवाने में काफ़ी दिलचस्पी दिखाई। आपको बता दें कि आबिद रसूल खान माजी में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के रियासती अखिलती कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं। वो एक मारूफ समाजी और सियासी शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं, जिन्होंने मुस्लिम अखिलियत के हुकूक और फलाह व बहबूद के लिए मुख्तलिफ सतहों पर खिदमत अंजाम दी। हैदराबाद में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान बीजेपी एमएलए टी राजा सिंह ने फिर नफरत अंगेज तकरीर की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रैली में बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए, जहां कुछ अफराद ने तलवारें लहराई और इश्तियाल अंगेज तकारीर के वाकयात सामने आए, जबकि पुलिस की भारी नफरी तैनात थी। राजा सिंह ने अपनी तकरीर में ओवैसी बरादरान को निशाना बनाया, जिस पर मुख्तलिफ हलकों की जानिब से तनकीद की जा रही है। उधर एक बीजेपी कारपोरेटर ने कहा कि हमें सिर्फ 5 मिनट चाहिए ताकि धर्म की आवाज़ बुलंद कर सकें और दुनिया को अपनी ताकत दिखा सकें। अरे चले, इतिहास लिखता है आज का हिंदू। इतिहास मेरे मित्रों, चढ़ मुगलों की छाती पर हमने भगवा लहराया था। चढ़ मुगलों की छाती पर हमने भगवा लहराया था। देख बाबर कब्र से उठकर हमने मंदिर वही बनाया है। तेलंगाना के जिले भद्राद्री कोत्तागुड़म से खबर है। एलंदू इलाके में वाक़े नागोल मीरा दरगाह में रामनवमी के मौके पर मजहबी हम आहंगी की खूबसूरत मिसाल देखने को मिली। इस मौके पर हिंदू खानदानों ने राम और सीता की मूर्तियों के साथ एक छोटा जुलूस निकाला, जबकि मुस्लिम खानदानों ने दरगाह में दुआओं और इंतजामात में भरपूर ताउन किया। ये दरगाह अपने मशहूर उर्स तकरीब के लिए भी जानी जाती है, जहां मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग इकट्ठे होकर शिरकत करते हैं। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने वजीर आजम मोदी को यकीन दिलाया है कि रियासत में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की सप्लाई मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम है और किसी किस्म की किल्लत नहीं है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान इन्होंने बताया कि चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में एक आला सतही कमेटी ईंधन की फराहमी की मुसलसिल निगरानी कर रही है। रियासत के तमाम 33 अजला में नोडल अफसरान के साथ खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं ताकि ईंधन की दस्तियाबी को यकीनी बनाया जा सके और ब्लैक मार्केटिंग को रोका जा सके। हुकूमत ने सोशल मीडिया पर गलत मालूमात फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। कांग्रेस के सीनियर लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों के मामले पर मरकज को निशाना बनाया। इन्होंने वजीर आजम मोदी की क़ियादत वाली हुकूमत पर सख्त तनकीद की और इल्ज़ाम आयद किया कि मोदी हुकूमत के 11 साल दौर में आवाम से भारी रकम वसूल की गई और सिर्फ ईंधन पर टैक्स के जरिए रोजाना तकरीबन 1000 करोड़ रुपये इकट्ठे किए जा रहे हैं। उनका कहना था कि चुनाव के बाद मोदी हुकूमत फिर से ईंधन के दाम बढ़ा देगी। This is the well-known dupe, deceive, distract style of Modi government and the BJP. They keep attempting to fool or befool all of us by they announce reduction in excise duty on petrol and diesel.
and push to media friends as if prices have gone down. They reduced excise duty on petrol, I was telling PCC President and Chief Minister, from rupees 13 to rupees 10 a litre, and on diesel from rupees 10 a litre to 0. Without but a paisa of relief for the common people of the country. Repeat it. This is called, they reduced excise duty without giving a single paisa of relief to ordinary Indian. This is called balance sheet management, convenient accounting and headline management. The burden will get transferred back to whom? To Government of India. Government of India will collect this money from whom? From you and me and from each one of us. And finally it is called inflict 1,000 wounds and then put a band-aid over them. That's what it is called. Friends, the truth is that Modi government's devious and unrelenting taxation of petrol and diesel over last 11 years is a cycle of loot for which Prime Minister must answer, BJP leaders must answer. And I want to place 5-6 facts before you. Number one, over last 11 years, by imposing excise duty on petrol and diesel, Government of India has collected 43 lakh crore. This is 1,000 crore a day. So what I've done is, there is a petroleum analysis cell in Government of India. Year-wise, they collect as to how much money Government of India has collected from excise duty. So for all the 11 years, I'm sending you a chart. PCC will be releasing it. If you total it, it comes to about 42 lakh crore. We've added the current figure for 26. मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में एलपीजी सिलेंडर्स के लिए लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं और ये शिकायत अब आम बन चुकी हैं। हालांकि हुकूमत ने दावा किया है कि गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन ज़मीनी सूरत हाल मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र की भिवंडी में सारिफीन गैस हासिल करने के लिए रात भर कतारों में खड़े रहे। ख़वातीन, बुजुर्गों और यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूरों की मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। कई अफराद का कहना है कि वो कई दिनों से सिलेंडर हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कुछ मजदूरों ने गैस न होने के बायस अपने आबाई इलाकों को वापसी शुरू कर दी है। दिल्ली के बाज़ इलाकों में भी इस तरह के मनाजिर देखने में आए हैं। जहांगीरपुरी में गैस एजेंसी के मालिक ने दावा किया कि किल्लत नहीं बल्कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी मसले की वजह है। बताया गया है कि कुछ लोग ज़्यादा सिलेंडर लेकर ब्लैक मार्केट में महंगे दामों फरोख्त करना चाहते हैं। कशीदा सूरत हाल के बायस एजेंसी पर बाउंसर्स तैनात किए गए और पुलिस को भी तलब करना पड़ा। तो दूसरी जानिब वजारत पेट्रोलियम ने कहा है कि मुल्क में तकरीबन 60 दिन का बफर स्टॉक मौजूद है और एलपीजी की सप्लाई भी मुनासिब मकदार में दस्तयाब है, जबकि किल्लत की खबरें फैलाना गुमराहकुन मुहिम करार दिया गया। मैं कल आया था, 3 दिन जा रहा रिक्शे वाला देखे 300 रुपये बोला भी मैं, तो बोले ठीक है, मैं सुबह देखो मिल जाएगा। तो मेरा दोस्त भी बोला इसको नंबर नहीं लगाने, तो बोले हाँ देखो सुबह मिल जाएगा देखो। तो अभी तक तो गेट ही नहीं खुला है। बाटला नहीं मिल रहा है, यही तकलीफ है। 15-20 दिन हो गए हैं चूल्हे पे खाना बनाते हैं। अरे सर गैस नहीं मिल रहा इसलिए खड़े हैं, और क्या। 1 हफ्ते हो गया, 1 हफ्ते से नहीं मिल रहा, आ रहे जा रहे इधर से, कहीं भेजते किधर चले जाओ, कहीं वही चले जाओ। अब यहाँ लेके छोटा बच्चे मैं कहाँ भागूं। मैं कामत घर से आया हूँ 20 किलोमीटर चलकर, और ये जो बाटला का जो समस्या है, बाटला नहीं मिलने का वजह से भिवंडी में सब कारीगर लोग, वर्कर लोग भाग रहे हैं गाँव। वर्कर लोग का समस्या है पूरा कारखाने में। इसमें जेन्युइन कंज्यूमर कम है और ब्लैक मार्केट वाले ज्यादा है। घर में स्टोर कर रहे हैं, लोग महंगा बिक रहा है, चक्कर में ब्लैक मार्केट के चक्कर में लोग इकट्ठा करके घर में रख रहे हैं, बाकी जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं है। देखिए बाउंसर इसलिए हायर करने पड़ गए क्योंकि ब्लैक लिए ज्यादा हो रही है, ब्लैक मनी ज्यादा हो रही है। आप सिलेंडर ब्लैक कर रहे हो। अब लोग सुबह से लगे हुए यहाँ पे, सुबह आ गए, ये कह रहे 18 तारीख से मैसेज आ गया, किसी के पास 1 तारीख मतलब 1 महीने पहले मैसेज आ गया।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और वजीर आजम मोदी के दरमियान 24 मार्च को फोन कॉल हुई थी। अब बताया गया है कि उस फोन राबते में अरबपति ताजिर एलॉन मस्क भी शामिल थे और दोनों ममालिक के सरबराहान की बातचीत की एलॉन मस्क की शिरकत की खबर सामने आई है, जिसने सिफारती हलकों में हैरत पैदा कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान गुफ्तगू में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, खुसूसन ईरान से मुताल्लिक़ कशीदगी पर तबादले ख्याल किया गया। व्हाइट हाउस ने इस गुफ्तगू को मुस्बत और नतीजा खैज करार दिया। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक एलॉन मस्क भी इस फोन कॉल में शामिल थे। ताहम ये वाज़ेह नहीं हो सका कि वो क्यों शरीक हुए या उन्होंने गुफ्तगू में हिस्सा लिया या नहीं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस नौइयत की आला सतही सिफारती गुफ्तगू में एक निजी शख्सियत की मौजूदगी गैर मामूली है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने मुल्क की मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान को हिदायत जारी की हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कहना है कि अदलिया में खाली आसामियों को जल्द ही पुर किया जाए और ख़वातीन जजेस की तक़र्रुरी को तरजीह दी जाए ताकि बेंचेस में तनव्वुर को यकीनी बनाया जा सके। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस ने गुज़िश्ता हफ्ते 25 हाई कोर्ट्स को ख़त लिखा और हाई कोर्ट्स में खाली आसामियों और ख़वातीन की कम नुमाइंदगी का मसला उजागर किया। इन्होंने ये भी कहा कि कॉलेजियम की सिफारिशात में ताख़ीर ना की जाए और ओहदे खाली होने से पहले ही तक़र्रुरियाँ करने की कोशिश की जाए। चीफ जस्टिस ने इससे कबल भी अदलिया में ख़वातीन की कम नुमाइंदगी पर तशवीश ज़ाहिर की थी और ज़ोर दिया था कि काबिल ख़वातीन वकला को जज बनाने के अमल को मामूल बनाया जाए। आंध्र प्रदेश के जिले चित्तूर से सड़क हादसे की खबर है। बेंगलुरु नेशनल हाईवे पर एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया जिसमें खातून और कमसिन बच्ची समेत 3 अफराद हलाक हो गए हैं। हुकाम के मुताबिक यह हादसा पल्लमा कोलापल्ली के करीब पेश आया है। दरअसल पालमनेरू से चित्तूर जाने वाली एक बस सड़क पर रुकी हुई थी और पीछे से आने वाली तेज रफ्तार कार इससे जा टकराई। हादसे में कार में सवार श्रीधर राव, उनकी अहलिया लक्ष्मी और 4 साला बेटी मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि ड्राइवर शदीद तौर पर जख्मी हुआ। बताया गया है कि मुतासरा खानदान तेलंगाना के वरंगल से ताल्लुक़ रखता था। पुलिस ने जेसीबी की मदद से तबाहशुदा कार को निकाला और फिर मामले की तहकीकात शुरू कर दी। आंध्र प्रदेश के जिले कर्नूल में रामनवमी की तकरीबात के दौरान अफसोसनाक वाकया पेश आया। यहाँ मुनक़िदा कबड्डी मैच एक अफसोसनाक वाक़े में तब्दील हुआ। यहाँ खेलते हुए एक नौजवान को अचानक से दिल का दौरा पड़ा और वो फौरी तौर पर फौत हो गया। इतलात के मुताबिक पट्टीकुंडा मंडल के एक गांव से ताल्लुक़ रखने वाला 20 साला वंशी कबड्डी के लिए खेलते हुए अचानक से ज़मीन पर गिर पड़ा। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर इसे अस्पताल मुंतकिल करने की कोशिश की, ताहम डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दे दिया।